Hello everyone, myself Kushali Kathiria. In this video, we discuss a heuristic search technique as well as we can say like a heuristic function. Okay, heuristic value. Heuristic it means assumption. Okay, we in heuristic function we use assume value for the find out the better path or better path cost. Okay, minimum path cost. Okay, so using heuristic function we can solve any kind of state space problem. Okay, so let's start. Heuristic search refer to a search strategy that attempts to optimize a problem by iteratively improving the solution based on the given heuristic function or cost measure. As per this paragraph, heuristic it means a assumption value as well as it is a use for the cost measure and improve the ऑप्टिमल सॉल्यूशन. ओके, जो कोई भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, जो कोई भी हमारा स्टेट स्पेस सर्च प्रॉब्लम है. ओके, हमने देखा है एआई के प्रॉब्लम्स में स्टेट स्पेस सर्च के यूज पर हमने कितने कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए. उसमें हम अगर ह्यूरिस्टिक फंक्शन यूज करते हैं तो वो हमें ऑप्टिमल आंसर देने में कितना यूज होता है वो ह्यूरिस्टिक फंक्शन यूज करता है. ओके, heuristic search method does not always guarantee to find the optimal or the best solution but may instead find the good or acceptable solution within a responsible amount of time and memory space. Okay, heuristic function it's not give a guarantee, it not gives always optimal solution but it tries to give optimal solution. But if they are fail in give optimal solution then it gives a good solution. Okay, at least good. Okay, वर्थ कंडीशन में जो हमारा आउटपुट होगा उससे तो अच्छा ही वो क्या करेगा. ह्यूरिस्टिक फंक्शन है, ह्यूरिस्टिक सर्च है, वो क्या देगा हमें गुड सॉल्यूशन देगा. और वो क्या होगा एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में होगा. एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में इट मीन्स फाइनाइट टाइम एंड मेमोरी स्पेस, लिमिटेड मेमोरी space. Okay, server commonly use heuristic search method include hill climbing method, the best first search and A star algorithm, simulated handling and generating algorithms. Okay, ह्यूरिस्टिक सर्च मेथड कब कहाँ कहाँ यूज होता है तो ग्रीडी दिस BFS इज इट मीन्स ग्रीडी BFS. ओके, as per informed search we can say best first search. Okay, but we can also say like greedy BFS. Okay, so we use heuristic function, heuristic value in hill climbing method, best first search method, A star algorithm, simulated handling as well as genetic algorithm. Okay, this sentence is referred from this kind of the paper. Okay, so let's start using a heuristic function. Okay, so what is a heuristic function? Heuristic function we can say like it is a assumption value and we find using the heuristic function we can find out the optimal path cost or optimal path of the state space problem. But if we cannot find the optimal solution it means we got or we find a good solution. Okay, good or better solution for worth condition, worth solution. Okay, here we will discuss about the 8 puzzle problem for the heuristic function as well as in next slide we discuss a block world problem. Okay, as per the AI problem in my previous video I have discussed about the 8 puzzle problem. Already I have discussed about 8 puzzle problem. What is a 8 puzzle problem? This is a 3 by 3 block. Okay, in 3 by 3 block we have 8 tiles and 1 blank tiles. Okay, 8 tiles contain a 1 to 8 number. Okay, and one blank slide we move with horizontally और vertically only. Okay, क्या करना है हमारे पास 8 पजल प्रॉब्लम में. 8 पजल प्रॉब्लम का यही है कि 3x3 का हमारे पास कोई ब्लॉक होगा, उसके 3x3 के ब्लॉक में क्या है कि 3x3 के ब्लॉक में 1 to 8 हमारे पास स्टाइल है. ओके, स्टाइल भी कह सकते हैं, नंबर भी कह सकते हैं. वो नंबर को हमें क्या करना है ऐसे डिजाइन करना है और ऐसे उस स्टेट में ले जाना है जो हमारा फाइनल स्टेट हो. वो उसे कैसे हम स्वैप कर सकते हैं तो एक ब्लैंक साइड के थ्रू. ओके, क्या होगा 8 स्लाइड है हमारे 8 स्टाइल है हमारे पास. 8 स्टाइल को हम मूव कर सकते हैं. कोई भी एक स्टाइल को किसके साथ मूव करना है ब्लैंक के साथ मूव करना है. ओके, और हमें क्या करना है गोल स्टेट को अचीव करना है. ओके, हम ब्लैंक स्पेस को किसके साथ मूव कर सकते हैं किसी एक स्टाइल किसी भी एक नंबर के साथ स्वैप कर सकते हैं. पर वो नंबर
उसके का तो हॉरिजॉन्टली होगा का तो वर्टिकली होगा, डायगोनली हम स्लाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम भी अगर हमें इस ब्लैंक को हमें मूव करना है 6 और 5 के साथ, देन वी मूव विथ 6 and 5 horizontally. Okay, if we want to move from vertically, then we can swap with 2 and 3, but we cannot swap with 7 and 1. So here this is a rules for the 8 puzzle problem. Okay, so here we have used for the 8 puzzle problem we use a heuristic function. For the heuristic function we took a simple heuristic function that is a h1 and h2. So what is a h1? H1 is the number of misplaced slide tiles. Okay, क्या है उसको हम हैमिंग डिस्टेंस भी बोल सकते हैं. ओके, h1 इज द नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड tiles and h2 is the sum of the distance of the tiles from their goal position. ओके, h1 क्या है हमारा? h1 हमारा ये है कि जो टाइल्स है हमारे पास, ओके, जो कोई भी टाइल्स है उसका मिसप्लेस जो कोई भी नंबर है वो, इट मीन्स हमारे यहाँ पर मिसप्लेस नंबर कितना है? 8 टाइल है, कोई भी अपनी पोजीशन पर नहीं है. चेक करते हैं हम. 7 कहाँ होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए. 2 कहाँ होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए. 1 कहाँ होना 4 कहाँ होना चाहिए? यहाँ पर. 5 यहाँ पर. 6 यहाँ पर. 7 यहाँ पर. 8 यहाँ पर. ठीक है. और ये वाला, इससे देखकर हम क्या पता चलता है कि सभी के सभी टाइल्स है वो क्या है? वो मिसप्लेस्ड है. इसलिए हमारे पास टोटल कितनी टाइल्स है? सॉरी 8. ओके, 8 है, इसीलिए हमारे 8 h1 की वैल्यू क्या होगी? 8 होगी, क्योंकि मिसप्लेस्ड टाइल्स की वैल्यू हमें यहाँ पर लिखनी है. h2 इज द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द टाइल्स फ्रॉम देयर गोल पोजिशन. ओके, फ्रॉम द करंट पोजिशन टू गोल पोजिशन उसको कितनी मूवमेंट करनी होगी? ओके, उसको कितने के साथ मूव करना होगा वो वाला हमें क्या करना है? लिखना है. ओके, तो हम देखते हैं पहले एक 1 की पोजीशन कहाँ पर है? यहाँ पर है. एक्चुअल करंट यहाँ पर है, बट गोल स्टेट में कहाँ दिखाई दे रही है? यहाँ पर. तो उसको कितना मूव करना होगा? तो या तो हम 1 2 3, ओके, या तो हम इस पाथ से जा सकते हैं या तो हम इस पाथ से जा सकते हैं. ओके, दोनों में से सेम ही होता है 1 2 and 3. ओके, इसका क्या होगा? 1 2 and 3. सो h1 में h2 की वैल्यू में 1 की डिस्टेंस क्या होगी? 3. ओके, यहाँ पर हम देखते हैं h1 number of misplaced tile is 8. okay, and h2 is the sum of the distance of the tiles from their goal position. okay, 1 की क्या हो गई? 3. now 2 कहाँ है? यहाँ पर. इसके लिए इसका मूवमेंट किसके साथ होगा? 4 के साथ. हम कर नहीं सकते, पर हमें क्या करना है? ह्यूरिस्टिक वैल्यू फाइंड करनी है. इसीलिए हम यहाँ इनडायरेक्टली हम ये बोल रहे हैं कि इसको एक मूवमेंट की जरूरत है. अगर यहाँ पर ब्लैंक होता तो ये डायरेक्ट यहाँ आ जाता, पर नहीं है. पर फिर भी हम क्या कर रहे हैं? एज्यूम कर रहे हैं कि ये इसके साथ स्वैप हो गया और यहाँ पर आ गया, इसलिए इसका डिस्टेंस कितना है? 1. ये कितना दूर है? 8 पाथ कोस्ट से दूर है. अब 3 की क्या पोजीशन है? 3 की ये पोजीशन है. हम एक्चुअल कहाँ पर है? यहाँ पर. इसलिए 1 and 2, अदरवाइज 1 and 2. सो path cost of 3 is 2. ओके, आफ्टर दैट 4 की क्या है वैल्यू? 4 की वैल्यू है ये वाली, बट हमें क्या करना है? हम डायगोनली मूव नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है? हॉरिजॉन्टली जाकर वर्टिकल जाना होगा. इट मीन्स 4 की भी क्या पाथ कोस्ट आई? 2. बाद में 5th की क्या पाथ कोस्ट आई? 2. एक्चुअल यहाँ पर है, देखो. ओके, बाद में 6 की 1 2 and 3. ओके, 1 2 and 3 यहाँ से भी मूव करेंगे तो 3 आएगा. ओके, 3. बाद में 7 की है 1 2 and 3. ओके, 3. and 8 की 1 and 2. so this is h2 value summation of all distance from the goal position. okay, so this is 18. so now from the h1 and h2 we expected, or we assume that, or we conclude that the neither heuristic overestimate the true number of movement required to solve the puzzle, which is a 26. it means overestimate नहीं होगा, अंडर एस्टिमेट होगा. 26 के अंदर ही आप मूवमेंट करोगे तो 26 मूव लेने के बाद
मैक्सिमम 26, ओके। मिनिमम आप 8 मुंह में भी कर सकते हैं, 6 में भी कर सकते हैं, 4 में भी, कोई भी आप नंबर जो कोई भी मिनिमम होगा वो ऑप्टिमल कहलाएगा। बट आपको क्या करना है, 26 मूवमेंट के अगर आपने 26 मूवमेंट से ज्यादा किया है तो वो क्या होगा, तो वो ओवर एस्टिमेट होगा। इट मीन्स ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या कहता है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या कहता है, आपको मैक्सिमम 26 तक लेना है मूवमेंट। अगर आप 27 ले रहे हो, ओके, इस पजल को सॉल्व करते वक्त आपने मूवमेंट 26 से ज्यादा लिया है तो क्या होगा, वो ओवर एस्टिमेट हो जाएगा। इट मीन्स जो कोई भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो क्या होगा, डिराइव नहीं होगा। इट मीन्स आप गुड सॉल्यूशन से भी बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, उसने बाउंड्री दी है कि आपको मैक्सिमम 26 में क्या करना है, ये पजल को सॉल्व कर देना है। इट मीन्स इस इनिशियल स्टेट में से इस गोल स्टेट पर आपको 26 मिनिमम मैक्सिमम 26 मूवमेंट में आ जाना है। अगर नहीं आए तो वो ओवर एस्टिमेट है, okay. So this is a heuristic function for the 8 puzzle problem. Now we discuss a heuristic function for the block word problem, okay. So as per the figure here, our start and goal node is, our start state is here one table have put B, C, D and A block, okay, and another our goal node is A, B, C and D, okay. So here we arrange our block like this is our initial state and this is our goal state, okay. हमें क्या करना है, हमारे पास A, D, C एंड B नाम के जो कोई भी ब्लॉक है वो टेबल पर रखे हुए हैं। टेबल में वो किस तरह से रखे हुए हैं, B के ऊपर C, C के ऊपर D, D के ऊपर A। दिस इज अवर इनिशियल नोड, ओके, दिस इज अवर स्टार्ट नोड। फ्रॉम द स्टार्ट नोड वी मूव और we arrange this block like this. It means A ग्राउंड पर होना चाहिए, ग्राउंड पर तो नहीं, टेबल पर होना चाहिए, बाद में B, बाद में C और बाद में D, okay. This is our start to goal node, so this is our goal node. So here we let's design the function which assign +1 for the brick at right position and -1 for 1 is the wrong position, okay. So यहाँ पर हम क्या करते हैं, राइट पोजीशन को हम, अगर हमारा ब्लॉक है वो राइट पोजीशन पर है तो हमें क्या करना है, उसको +1 देना है। अगर वो राइट पोजीशन पर नहीं है तो हमें क्या करना है, -1 को उसको नंबर देना है। So here our local heuristic is like that, +1 for each block that is resting on the thing it is supposed to be resting on. It means +1 हम किसको दे रहे हैं, +1 हम उसको दे रहे हैं जो उसके ऊपर हो। अदर इट मीन्स क्या, एक्सपेक्टेशन क्या है यहाँ पर, बी के ऊपर सी के होने की, ओके, बी के ऊपर सी के होने की, ओके। बी के ऊपर क्या है, सी है, यहाँ पर बी के ऊपर सी है, हाँ है, तो हम क्या करेंगे, सी को हम +1 दे देंगे। इट मीन्स ए के ऊपर क्या होगा, बी, ए के ऊपर क्या है, बी नहीं है, यहाँ पर हम क्या देंगे, -1 किसको, इसको, ओके। बाद में डी क्या है, सी और डी साथ में है, इट मीन सी और डी साथ में है, इसलिए हम डी को क्या देंगे, +1, क्योंकि डी की पोजीशन क्या है, सी के ऊपर, सी की पोजीशन क्या है, बी के ऊपर, बी की पोजीशन क्या है, ए के ऊपर, तो बी की पोजीशन तो गलत है, तो यहाँ पर हम -1 करेंगे, यहाँ पर हम +1 करेंगे, यहाँ पर हम +1 करेंगे, और ए की पोजीशन क्या है, ए की पोजीशन है ग्राउंड पर, तो यहाँ पर क्या होगा, -1, ओके। दिस इज अ 1, ओके, क्यों, क्योंकि सॉरी बी की पोजीशन क्या है, ए के ऊपर, इसलिए ये -1, ओके। सी की पोजीशन क्या है, बी के ऊपर, ये राइट है, इसीलिए 1, ओके। डी की पोजीशन क्या है, सी के ऊपर, ओके, दिस इज अ 1, दिस इज अ -1, ओके। ए की पोजीशन क्या होनी चाहिए, ए की पोजीशन ग्राउंड पर होनी चाहिए, इसीलिए इसकी पोजीशन क्या है, -1। समेशन ऑफ ऑल स्टेट, ओके, इसकी सम क्या होगा इसका, इस सब का सम क्या होगा, -1 +1 +1 -1, इट मीन्स 0, ओके।
and this is our right position, so there here +1 +1 +1 and +1, so our goal is a 4. so now we check. ओके, स्टार्ट नोड है हमारा ADCB एंड गोल नोड है DCBA. ओके, और वी कैन से लाइक ABCD. ओके, सो हियर वी मूव A ऑन ग्राउंड. ओके, तो क्या होगा, A को हम ग्राउंड पर मूव करेंगे, तो A को हम ग्राउंड पर मूव करेंगे, A को हम ग्राउंड पर मूव करेंगे, इट मीन्स उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो क्या होगी, ये वाली है, ये वाली है ना. ओके, तो हमने क्या किया है, A को हमने +1 कर दिया. ठीक है, बाद में हमने क्या किया, अब हम चेक कर रहे हैं BCD की पोजीशन. B की पोजीशन क्या होनी चाहिए, B की पोजीशन होनी चाहिए A के ऊपर. A के ऊपर है, इसके ऊपर होनी चाहिए ना, पर नहीं है, वो ग्राउंड ऊपर है, इसलिए -1. C की पोजीशन क्या होनी चाहिए, फ्रॉम द गोल नोड. गोल नोड वी कैन फ्रॉम द गोल नोड वी लुक कि C की पोजीशन है B के ऊपर, सो हियर 1 +1. ओके, आफ्टर दैट D की पोजीशन C के ऊपर, इसीलिए ये 1. ओके, so 1 + 1 + 1 is equal to 3. 3 - 1 is equal to 2. So here this value is a 2. Okay, from the goal state we okay, हमने क्या किया है, तो हमने किया है कि हमारा जो स्टार्ट नोड है 0, हम कहाँ पर जाना है, 0 से 4 तक जाना है. तो हमने क्या किया, पहला स्टेप अचीव किया है कि हम 0 से कहाँ पर आए, 2 पर आए. आगे का ऑल पोजीशन भी हम चेक, अदर पोजीशन को भी हम चेक कर सकते हैं. कैसे करेंगे, अब हमें क्या करना है, D को हमें ले जाना है. अब क्या करना है, B को इस पर रखना है ना, तो क्या करेंगे, D को हम नीचे ले जाएंगे. तो हमारे पास दो ऑप्शन है, D को हम का तो A के ऊपर रखें, या तो फिर D को हम ग्राउंड पर रख दें. ठीक है, क्या किया है, D को हमने पहले A के ऊपर रख दिया. A के ऊपर रखते ही हमने क्या देखा है, A की पोजीशन तो बराबर है, क्यों है, वो 1 है. बाद में D की पोजीशन होनी क्या चाहिए, C के ऊपर, बट नहीं है, तो इसीलिए वो -1. C की पोजीशन B के ऊपर है, इसीलिए वो +1, पर B की पोजीशन क्या है, ग्राउंड पर, होनी कहाँ चाहिए, A के ऊपर. सो हियर समेशन ऑफ ऑल ऑफ थिंग इज 0. क्यों, +1 -1 कट गया, -1 +1 कट गया. ओके, सेकेंड सॉल्यूशन इज, सेकेंड पॉसिबिलिटी इज, D को हमने क्या करना है, D को हमें क्या करना है, एक तो हमें A पर रख दिया, अब हमें क्या करना है, D को ग्राउंड पर रख देना है. तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1. ओके, लिख देती हूँ, यहाँ पर 1. ओके, पोजीशन राइट है, A की ग्राउंड पर होना चाहिए. D की पोजीशन राइट नहीं है, इसलिए -1. C की पोजीशन राइट है, इसलिए 1, बट B की पोजीशन राइट नहीं है, इसलिए -1. तो और नेक्स्ट क्या हुआ, उसका समेशन भी 0 हो गया. अदरवाइज हमारे पास ये भी है कि हम जो हमारा पहला नोड था, ये वाला, ओके, पहला हमारा था, A को हमने यहाँ पर रख दिया, बाद में हमने क्या किया, D को हमें नीचे रखा और A के ऊपर रखा. अदरवाइज हम क्या कर सकते, A को बाद फिर से हम ऊपर ले जा सकते थे, तो ये वाला क्या हो गया, 0. आफ्टर दैट हमें क्या करना है, ये वाले स्टेट को कंटिन्यू करना है. क्यों कंटिन्यू करना है, क्योंकि A के ऊपर हमें कुछ नहीं चाहिए, A के ऊपर D नहीं चाहिए, A के ऊपर B चाहिए. इसलिए हम क्या करेंगे, अब हम C को भी ग्राउंड पर रखेंगे. C को ग्राउंड पर रखने के बाद B को हम ऊपर रखेंगे, C को हम उसके ऊपर और D को इसके ऊपर. और हम कैसे करेंगे, हमारा गोल स्टेट है वो हम अचीव करेंगे. ओके, दिस इज अ ह्यूरिस्टिक फंक्शन फॉर द ब्लॉक वर्ल्ड प्रॉब्लम फॉर फ्रॉम 0 to 4. And this is another version or another example your for yourself. Okay, so try out for yourself. From starting node is a -6 and goal node is a 6. Okay, सेम अरेंजमेंट करनी है, सिर्फ आपको देखना है कि A और D को हम मूवमेंट करेंगे तो हमारी वैल्यू
क्या आ रही है. ओके, so this is a heuristic function for the block word problem, as well as this is 8 puzzle problem. And what is a heuristic function? Heuristic function is used for the uh, sorry, this is a use for the this is not actual value, but this is a assumption value. Okay, and heuristic function try to give a optimal solution and give a best, try to figure out a best solution, but if cannot, then it gives a good solution or acceptable solution in reliable time or memory space. Okay, so this is a heuristic function also used in greedy as well as A star algorithm and AO star algorithm. We will see how to work a greedy BFS, A star algorithm and AO star algorithm in next video. Okay, thank you.